السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ ہمارا چوتھا لیسن ہے۔ ہم 3 لیسن میں پڑھ چکے ہیں، الف با تا ثا جیم دال، جیم ح خا دال دال را تک، اور چوتھا لیسن شروع ہو رہا ہے زا سین شین۔ زا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زا زی زو، یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہو گیا زبان کی نوک۔ زبان کی نوک جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے لیسن میں بھی بتایا جا چکا ہے زبان کی نوک کسے کہتے ہیں۔ یہ اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت، یہ دونوں 4 دانت ہو گئے۔ اسی 4 دانت کے زبان کی نوک قریب رہے گی، اس میں ملے گی نہیں بلکہ قریب رہے گی، ایسے ز ز، یعنی زبان اندر ہی رہے گی۔ زبان ان 4 دانتوں کے سامنے رہے گی، اندر رہے گی، اور آپ کو اندر سے آواز نکالنا ہے، ز ز آواز نکالنا ہے، آپ کو ویبریشن کی طرح آواز نکالنا ہے۔ وہ جو زبان ہے یہ سامنے کے 4 دانتوں کے قریب ہی رہے گی مگر ملے گی نہیں، اور آپ کو اندر سے آواز نکالنا ہے زور سے، ز ز زی زو۔ بولنے کی کوشش کیجیے، آپ بھی ویڈیو کو پوز کیجیے اور بولنے کی کوشش کیجیے کہ زبان کی نوک کو سامنے کیجیے، وہ یہ 4 دانت ہے اوپر کے نیچے، اوپر اور نیچے، ان چاروں کے قریب سامنے رکھنے کی کوشش کیجیے مگر ملائیے مت، اور وہاں سے ادا کیجیے، ز زی زو، از از از، از ازی ازو۔ اب اس کے بعد آتا ہے سین۔ سین یہ بھی وہیں سے ادا ہوگی۔ اصل میں 2 سین ہوتی ہیں، ایک سین جس میں نقطے نہیں ہوتے اسے چھوٹی سین کہتے ہیں، اور ایک شین جس میں نقطے ہوتے ہیں اسے بڑی شین کہتے ہیں۔ یہ صرف بولنے کے لیے ہیں، حقیقت میں جو سین ہے اسے چھوٹی سین نہیں کہا جاتا، لیکن ادا ہی ایسے کیا جانا چاہیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے چھوٹی سین ہے۔ جیسے چھوٹی سین آپ کہتے ہیں کہ ساگر، یا پھر سامنے، سنگم، سیدھا، یہ سب آپ چھوٹی سین سے کہتے ہیں۔ اس کی آوازیں ایسی ہوتی ہے کہ ہلکی سی سیٹی، چھوٹی سی سیٹی، پتلی سی سیٹی ہوتی ہے، اور یہاں سے چھوٹی سی سیٹی ہوتی ہے اور اس طرح یہ سین ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے شین، اسے بڑی شین کہتے ہیں، اس میں 3 نقطے رہتے ہیں، اور اس کو شین، یہ یعنی موٹی آواز ہوتی ہے اس کی، اور دونوں کے ادا کرنے کی جگہ الگ الگ ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، دونوں الگ الگ جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ چلیے آپ کو پہلے سین کے بارے میں بتا دیں کہ سین کہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی زا کے بعد جو سین ہوتا ہے، سین کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ سین، آپ کتاب کو سامنے رکھیے اور اس طریقے سے دیکھیے، مشق کیجیے، ایکسرسائز کیجیے، محنت کیجیے، انشاءاللہ سب ادا ہو۔ سین وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ابھی زا ادا ہوا، کہاں سے؟ ایک زبان کی نوک اور سامنے کے 4 دانت، جو اوپر کے 2 نیچے کے 2 ہیں، ان 4 دانتوں کے قریب میں ہی رکھنا ہے، لیکن سٹانا نہیں ہے، اندر ہی رہے گی زبان، اور وہاں سے آپ کو آواز نکالنا ہے، ز زی زو۔ تو ایسے ہی س سی سو وہیں سے ادا ہوگا، چونکہ اس کی صفات بدل جاتی ہے اسی لیے آواز بھی بدل جاتی ہے، مگر مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے زا بھی ادا ہوتے ہیں اور سین بھی ادا ہوتی ہے۔ تو بولیے سا، ہلکی سی سیٹی رہے گی، سا سی سو۔ اس کے اش، اش،
उश नहीं, ये तो बड़ी शीन हो गई, लेकिन बड़ी शीन नहीं है, बल्कि सा सी सु पहले अदा करना है, उसके बाद बोलना है अस इस उस, उसके बाद बोलना है अस अस्सी अस। उसके बाद अब आती है शीन। ये शीन जो है इसकी जगह ही अलग है, ये ज़बान के बीच और उसी के सामने तालु से लग कर के अदा होती है। जैसे ये ज़बान के बीच है, ये ज़बान के बीच का हिस्सा है, उसी के सामने ऊपर जो तालु है, उसी के सामने तालु, वहाँ पे मिलेगा, ज़बान का जो बीच है वहाँ पे मिलेगा, और ज़ोर से आपको आवाज़ निकालना है। जैसे श श श निकाल लिए, ज़बान के बीच को उसी के सामने के तालु से लगा दीजिए। ऐसे ज़बान के बीच, जैसे ये ज़बान का बीच है, मान लीजिए ये ज़बान का बीच है, इसी बीच को ऊपर ये जो तालु है, तालु ऊपर तालु, तो ऐसे सटा देना है, ऐसे इसी बीच को ऊपर के तालु से ऐसे सटा देंगे और ज़ोर से आवाज़ निकालेंगे और बड़ी सीटी करेंगे। जाहिर बात है कि ये एक आध दो दिन में, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, एक आध दो दिन में अदा नहीं होती है, तो हिम्मत ना हारे, इंशाल्लाह अदा होगा, टाइम लगेगा उसके लिए, हो जाएगा, मगर आप सब्र रखिए और मेहनत कीजिए, उम्मीद रखिए। श शी शु अश इश उश अश अशी अशु। आपको खुद भी बोलना है, सिर्फ सुनना नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिए या मेरे साथ बोलिए, मगर बोलिए, चलिए मेरे साथ बोलिए। श शी शु अश इश उश अश अशी अशु। चलिए अब हम पेज नंबर 17 में आते हैं। पेज नंबर 17 में बताया गया था कि ज़ेर को भी मारूफ पढ़ा जावे और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। देखिए इससे पहले वाले पेज में हमने पढ़ा, यानी 16 नंबर पेज में, नूरानी कायदा के पेज नंबर 16 में पढ़े कि तख्ती नंबर 3 हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए। तो इसके बाद वाले पेज में जो ज़ेर की बात है, तो ज़ेर भी हरकत में आता है और ज़ेर को भी जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। लेकिन उससे हटकर एक दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ऐसा क्यों बताएं? इसलिए कि हम इंडियन लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, तो ये लोग उर्दू बोलते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि ज़ेर को मजहूल पढ़ते हैं। मजहूल और मारूफ में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। मारूफ कहते हैं ज़ेर की आवाज़ को बिल्कुल नीचे की तरफ करना, नीचे की तरफ, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सी जी। तो कुरान करीम के अंदर जहाँ कहीं भी ज़ेर आया है, आपको उसकी आवाज़ को नीचे की तरफ ले जाना, बिल्कुल नीचे की तरफ। कुरान करीम में सिर्फ एक ही जगह मजरेहा में, खड़ी ज़ेर में, वहाँ पे मजहूल पढ़ते हैं। बाकी सब जगहों में, यानी पूरे कुरान में जहाँ कहीं भी ज़ेर आया, आपको आवाज़ को बिल्कुल नीचे करना है। जैसे ई, बी, ती, जहाँ कहीं भी आए, ये याद रखें, इसे कहते हैं मारूफ। और मजहूल किसे कहते हैं? मजहूल कहते हैं आवाज़ को नीचे की तरफ नहीं करना, ना ऊपर की तरफ करना, दरमियान में करना। ऐसे ए, बे, ते, जे। तो ये कहीं भी कुरान में नहीं पढ़ना है, अरबी में पढ़ना ही नहीं है, कुरान में कहीं है ही नहीं, इसीलिए इसको भूल जाइए। हाँ, उर्दू बोल चाल में लोग बोल देते हैं इधर उधर, लेकिन ये अरबी में नहीं होता है। इसीलिए आप याद रखिए कि ज़ेर की आवाज़ हमेशा मारूफ पढ़ा जाता है। ज़ेर की आवाज़ मारूफ होती है, यानी बिल्कुल आवाज़ नीचे को चली जाती है, याद रखिए। अच्छा, ये आपको ज़बान याद रखना है कि ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए, मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती,
फ ज़ेर ती, ऐसे पढ़ना है आपको, ऐसे पूरा या तक पढ़ना है। और फिर मतन ई बी ती सी जी ही। आप भी मेरे साथ पढ़िए, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, ता ज़ेर ती। ऐसे ही आप या तक पढ़िए, ठीक है। उसके बाद मतन भी पढ़िए, ई, मेरे साथ बोलिए, बी ती सी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और एक मिसाल तो याद रखना है ज़बानी, जैसे हमज़ा ई बी ली, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। आपको जो वर्ड पढ़ना है, अल्फाज लफ्ज़ पढ़ना है, तो जब तक वो लफ्ज़ पूरा ना हो जाए पीछे से मिलाते रहना है। रौ ज़बर रौ, दाल ज़ेर दी, रौ दी, फ ज़बर फ, रौ दी फ। देखिए हमने ज़बर को यहाँ पे जल्दी पढ़ा, रौ दी फ। क्यों जल्दी पढ़ा? इसलिए कि ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ये दिमाग में रख लीजिए आप कि यहाँ पे ज़बर है। रॉ को जल्दी क्यों पढ़ा? इसलिए कि रॉ के ऊपर ज़बर है, और ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। आपने अभी पढ़ा उधर कि हरकत को जल्दी पढ़े, जब हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। हरकत में क्या था? ज़बर ज़ेर पेश। ओके, हमीदा, ह ज़बर ह, मीम ज़ेर मी, हामी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शहीदा, शीन ज़बर श, हा ज़ेर ही, शही, दाल ज़बर दा, शहीदा, बखीला, बा ज़बर ब, खा ज़ेर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला, सखीरा, सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, सखी, रा ज़बर रा, सखीरा, रहीमा, रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, रही, मीम ज़बर मा, रहीमा, लाइबा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा, शीन ज़बर शा, रा ज़ेर री, शरी, बा ज़बर बा, शरीबा, आमीला, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, लाम ज़बर ला, आमीला, बारीक़ा, बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बारी, क़ाफ ज़बर क़ा, बारीक़ा, खतीफ़ा, खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, खती, फ़ा ज़बर फ़ा, खतीफ़ा, जज़ीआ, जीम ज़बर जा, ज़ा ज़ेर ज़ी, जज़ी, आइन ज़बर आ, जज़ीआ, सक़ीमा, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, सक़ी, मीम ज़बर मा, सक़ीमा, गाशिया, ग़ैन ज़बर ग़ा, शीन ज़ेर शी, गाशी, या ज़बर या, गाशिया, नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, नसी, या ज़बर या, नसीय। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। याद रखिए, आप जब भी वीडियो देखें, वीडियो इसीलिए बनाया जाता है कि आप सुकून से कहीं बैठ के किताब खोल कर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो जब भी आप वीडियो देखिए, पहले किताब खोल लीजिए, आराम से बैठ जाइए कहीं पर, और जैसे जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा आपको किताब में देखना है। और अगर ये भी कोशिश करेंगे कि ये देखने के बाद जो पिछला सबक है उसको भी रिवाइज़ करते रहिए। अभी स्टार्टिंग है चूँकि आप लोगों की, तो उसे अगर जो शुरुआत की है, यानी पहले के लेसन से, लेसन 1 2 3, ये सब अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा स्पीड में देखते रहिएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्पीड में यूट्यूब में आप देखते हैं तो उसमें स्पीड मोड में डाल दीजिए, जैसे 1.25 या 1.50 या 1.75 या फिर 2 पॉइंट में देखिए, यानी डबल करके, उसमें जल्दी जल्दी भी आपका हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और सिर्फ आप सुनते ही ना रहें, बल्कि उसे अपनी ज़बान से भी अदा करते रहिए इंशाल्लाह। और जो भी डाउट्स होता है आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए और डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको अदा नहीं हो रहा वो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह होगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।